آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ پیٹن گیٹ اور سبزی منڈی کے 3 DP راستوں کا آج کیا گیا ٹوٹل اسٹیشن سروے۔ مارکنگ کے بعد ہوگی یہاں انہدامی کارروائی، کہا اسسٹنٹ میونسپل کمشنر رمیش مورے نے۔ کہیں گزشتہ دنوں یہاں پیش آئی قتل کی واردات کے سبب تو نہیں کی جا رہی ہے کارروائی، مقامی ساکنان میں چرچے جاری۔ لوکل باڈی انتخابات کا بگل بجتے ہی سیاسی گلیاروں میں توڑ پھوڑ کی ہلچل ہو گئی شروع۔ شیو سینا ادھو گروپ کے جالنا ضلع صدر نے تھام لیا ایکناتھ شندے کا ہاتھ۔ شندے اور دیگر قائدین نے کی پارٹی ورکرز کی رہنمائی۔ انٹرول کے دوران کھانا کھا رہے طلباء پر اچانک گر پڑا MS انگلش اسکول کی چھت کا ایک حصہ۔ اسکولی عمارتوں کی خستہ حالی پر شعبہ تعلیم کے افسران کی چشم پوشی سے سرپرستوں میں پھیل گئی ناراضگی۔ اور گانجے کا کاروبار کرنے والا ایک رکشہ ڈرائیور سڑکو MIDC پولیس اسٹیشن کے شکنجے میں 4 کلو گانجا بھی کیا گیا ضبط۔ صدر بازار پولیس اسٹیشن جالنا نے بھی کی بڑی کارروائی۔ چوری کی واردات کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں سارقوں کو کر لیا گرفتار۔ 17 لاکھ روپے نقد اور ½ کلو مسروقہ چاندی بھی کر لی برآمد۔ خبریں تفصیل سے۔ AMC کے سٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ناجائز قبضہ جات ہٹاؤ دستے کے عہدیداران و ملازمین نے آج پیٹن گیٹ اور سبزی منڈی کے 3 DP راستوں کا ٹوٹل اسٹیشن سروے کیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مارکنگ کے بعد متاثرہ عمارتوں پر انہدامی کارروائی کی جائے گی، جس کے سبب مقامی ساکنان میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ ناظرین، میونسپل کارپوریشن کے زون نمبر 2 کے اسسٹنٹ میونسپل کمشنر، سٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے کے ملازمین آج پیٹن گیٹ علاقہ پہنچے اور وہاں موجود 3 DP راستوں کا ٹوٹل اسٹیشن سروے کا آغاز کیا، جو شام تک جاری رہا۔ اس سروے میں 30 میٹر کی مین روڈ کے ساتھ 9 اور 15 میٹر کے راستوں کا بھی ٹوٹل اسٹیشن سروے کیا گیا۔ زون نمبر 2 کے اسسٹنٹ کمشنر رمیش مورے نے MCN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سروے کے بعد متعلقہ جائیدادوں کی مارکنگ کر کے انہیں نوٹسز جاری کی جائے گی، جس کے بعد باقاعدہ انہدامی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن کی ٹیم کی جانب سے جاری سروے کے سبب پیٹن گیٹ علاقے کے دکانداروں اور کاروباریوں میں ممکنہ توڑ پھوڑ کارروائی کے خوف سے کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے راہل مارکھیڑے، زون نمبر 2 کے اسسٹنٹ کمشنر رمیش مورے، بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید اور شہری دستے کے دیگر اہلکار موجود تھے۔ جتنی بادت پراپرٹی ہے آج ہم اس کا ٹوٹل سرویشن کر رہے ہیں۔ ٹوٹل سرویشن کے بعد میں اس میں سمجھ میں آئے گا ہماری کتنی جگہ اس میں بادت ہے۔ اگر بادت ہوگی تو ہم 2-3 دن کے اندر ڈیمولش کر دیں گے۔ یہ 9 میٹر کا راستہ ہے، یہ باجو کی گلی، اور جو پیچھے کا دیکھ رہے ہیں وہ 30 میٹر کا راستہ ہے، یعنی 100 فٹ کا راستہ وہ ہے۔ 9 میٹر ہے، 15 میٹر وہ سامنے کا راستہ جو 15 میٹر کا ہے۔ کارن کچھ بھی نہیں، اس کے ڈاکومنٹ منگایا ہم نے کہ بھائی پراپرٹی آپ کی لیگل ہے انلیگل ہے، اس کے بارے میں تک منگایا، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انلیگل ہوتی ہے تو ہم اس پہ جو ایکشن ہوگی کارروائی دیکھیں گے۔ یہ 2-4 دن کے اندر یا اگلے ہفتے میں کارروائی شروع ہو جائے گی۔ آج مارکنگ کی ہے سر، آج صرف ٹوٹل سرویشن ہوا ہے، کل مارکنگ چالو ہو جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن میں 12 مختلف زمروں کے 224 عہدوں پر الیکشن سے پہلے ہی تقررات کرنے کی تیاریاں انتظامیہ نے شروع کر دی ہیں۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق مذکورہ تمام عہدیدارات کے روسٹر یعنی بندو نیماولی کو چونکہ ڈویژنل کمشنر کی منظوری مل چکی ہے، اس لیے میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات سے پہلے ہی تقرری عمل شروع کروانے پر انتظامیہ غور کر رہا ہے۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے ہر شعبے میں میعاد مکمل کر کے ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہر مہینہ 15 تا 20 افسران و ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں۔
इसीलिए बल्दी कामकाज के लिए प्राइवेट एजेंसियों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स व मुलाजमीन को आर्जी तौर पर मुलाजमत में शामिल किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हजारों कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स फिलहाल काम कर रहे हैं। इसी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जरूरत के मुताबिक नए ओहदेजात का प्रोविजन करके तकर्रुरात पर मुश्तमिल प्रपोजल हुकूमत को पेश किया गया था। ताखीर ही से सही हुकूमत ने 5000 ओहदेजात के स्टाफिंग पैटर्न और रिक्रूटमेंट रूल्स को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इंतजामिया ने तकर्रुरात का सिलसिला शुरू किया। अब 224 ओहदेजात पर मुस्तकिल तकर्रुरात की तैयारी शुरू कर दी गई है। डिवीजनल कमिश्नर की जानिब से 12 मुख्तलिफ ज़मरों में शामिल 224 ओहदेजात के रोस्टर को हाल ही में मंजूरी मिली है। लिहाजा हुकूमत के ज़रिए मुकर्रर की गई एजेंसी IBPS की मारिफत तकर्रुरात करवाने की सरगर्मियाँ तेज़ की जा चुकी हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले ही इंतज़ामिया 224 ओहदेजात पर मुस्तकिल मुलाजमीन के तकर्रुरात करवाने के लिए कोशा है, जिसके लिए IBPS एजेंसी की मारिफत इश्तिहार शाये करवाया जाएगा। एजेंसी के ज़रिए ही दरख्वास्तें मंगवाई जाएंगी और स्क्रूटनी के बाद तालीमी लियाकत रखने वाले दरख्वास्त गुजारों के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे। इस मरहले की तकमील के बाद एजेंसी ही अहल उम्मीदवारों का सिलेक्शन करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सिफारिश के साथ फहरिस्त सौंपेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आम इंतखाबात का बिगुल बच चुका है। ब्लॉक्स तश्कील के बाद मख्तस वार्ड्स के लिए खुरा अंदाजी भी हो चुकी है। वोटर लिस्ट को खतयत देने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान और ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर सकता है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी शिकान की कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ही तकर्रुरात कर लिए जाएं। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 10 से 15 दिनों में IBPS एजेंसी के जरिए 224 ओहदेजात के तकर्रुरात के ज़िमन में इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा। मज़कूरा 224 ओहदेजात में IBPS एजेंसी के जरिए 4 डिप्टी फायर ऑफिसर्स, 100 फायरमैन, 32 इंजीनियर, 24 जूनियर इंजीनियर, 9 ट्रेसर्स, 12 अकाउंट ऑफिसर, 6 गार्डन असिस्टेंट के अलावा 12 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के ओहदेजात पर तकर्रुरात करवाए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू लिए जाएंगे। शिवसेना शिंदे ग्रुप के जालना जिला सदर भास्कर अंबेकर ने आखिरकार शिवसेना उद्योग ग्रुप को अलविदा कहते हुए शिंदे ग्रुप का दामन थाम लिया। उन्होंने पार्टी सरबराह और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाजरीन, शिवसेना उद्योग ग्रुप में अपने साथ नाइंसाफ़ी होने का इल्ज़ाम लगाते हुए जालना के पार्टी ज़िला सदर भास्कर अंबेकर ने बिलाखिर उद्धव ठाकरे को अलविदा कह दिया। 12 नवंबर को उन्होंने नायब वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर शिवसेना में दाखिला लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली। इस मौके पर डाइस पर नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, मरकजी वज़ीर प्रताप जाधव, MLA अर्जुन खोतकर, MLA हिकमत उड़ान, जिला सदर भाव साहब घुगे, युवा सेना के सेक्रेटरी अभिमन्यु खोतकर समेत कई ओहदेदारान मौजूद थे। आणि म्हणून माझ्या बूथ प्रमुखांना देखील मी सांगतो की तुमच्यात देखील स्पर्धा लागली पाहिजे। माझा बूथ सगळ्यात मजबूत, माझा बूथ सगळ्यात मजबूत असं तुमच्यामध्ये देखील स्पर्धा लागली पाहिजे। आणि खऱ्या अर्थाने ती स्पर्धा या ठिकाणी अर्जुनराव आहेत, हिकमत उड़ान आहेत, आमचे मंत्री महोदय प्रतापराव आहेत, सगळं व्यासपीठावर सगळे आमदार, मंत्री, जिल्हा प्रमुख, पदाधिकारी, महिला आघाडी सगळी आहे आणि त्याच्यामध्ये आज भास्करराव आंबेकर पण आहे। वहां पर लिखा है एकनाथ शिंदे नेक है, खोतकर आंबेकर एक है। ए तुमच्या आतूनचं जे काय अंदर की बात आहे। आणि मला तेव्हा समजलं एक एक माणूस माग का ठेवला आहे। गनिमी काव्यामध्ये अर्जुनराव उस्ताद है। बीजेपी हुकूमत अजीत पवार और पार्थ पवार को बचाने की कोशिश कर रही है। ये संगीन इल्ज़ाम शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद व साबिक अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लगाया। पूर्णपणे पार्थ पवार आणि अजित पवारांना वाचविण्याचा प्रयत्न सरकार करते। जसं त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस अजितदादा चक्की पिसिंग आणि नंतर त्यांचं किसिंग सुरू झालं। तसंच या प्रकरणात भारतीय जनता पार्टीनंच अडचणीत आणायचं, भारतीय जनता पार्टीनेच प्रकरण बाहेर काढायचे आणि भारतीय जनता पार्टीने ते आपल्या
कह्यात राहावे म्हणून अशा पद्धतीनं वर्तणूक करायची, अशा पद्धतीचं मोडस ऑपरेंडी ही गुन्हेगारी स्वरूपाची भारतीय जनता पार्टीची आहे. एकीकडं महार वतनाची जमीन विकली काय जाते, कंपनीचा डायरेक्टर असताना पार्थ पवारवर गुन्हा दाखल का होत नाही, मुद्रांक शुल्क चुकवलं जातं म्हणून कारवाई होते, आणि आताच मुद्दा जर व्यवहारच झाला नाही तर मुद्रांक शुल्क का भरायचं असा प्रश्न अधिकारी एकीकडे मुद्रांक शुल्क भरायला पाहिजे असं म्हणत असताना भरावं लागेल तोपर्यंत व्यवहार रद्द होत नाही. हा नियमच आहे. उद्या माझ्या मनावर नसतं एखादा व्यवहार केला तो रद्द करायचा तर तेवढंच मुद्रांक सरकारला भरावा लागतो, नाही तर रोज सकाळ संध्याकाळ लोक व्यवहार करतील आणि तोडतील. विदाऊट रुपया जर भरायचा असला ना तर मला असं वाटतं लोक अशा पद्धतीनं गोळ्या लावून याच्यानंतर मुद्रांक व्यवहार रद्द करतील. हा धोका येणाऱ्या काळातला, आणि म्हणून बावनकुळे साहेबांनी जी काही भूमिका घेतलेली अतिशय चूक आहे. पार्थ पवार अजित पवार सोडून द्या, ओव्हरऑल सामाजिक दृष्टीनं ही सगळी जर अशा पद्धतीनं त्यांचं भूमिका असेल तर ती चुकीची ठरेल, आणि याच्यात भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे पार्थ पवारला वाचवते. पार्थ पवार काय लहान बाळ आहे का, ज्याने लोकसभा लढलेली आहे, ठीक आहे पराभूत झाला असेल पण लोकसभा लढणारा माणूस काही बाळ नाहीये. कोणाचा मुलगा म्हणून त्याला ट्रीट करू नये, एक भारताचा नागरिक म्हणून आणि गुन्हेगार म्हणून त्याला ट्रीट केलं पाहिजे. परंतु भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचारानं बरबटलेली भारतीय जनता पार्टी पार्थ पवारला सुद्धा वाचविण्याचा प्रयत्न करते. अजून या सगळ्याच्यात अनेक कारवाई बाकी आहे. खरं ते प्रकरण आणखी भरपूर बाहेर निघणार आहे. याचे पेपर्स हळूहळू येत आहेत, याची खरेदी खत सुद्धा बाहेर येत आहे. या सगळ्या गोष्टी येत असताना तुम्ही तहसीलदार, एक तहसीलदार 40 एकरची कोरेगावची मुंडव्याची जमीन थोडी करू शकतो, त्याची एवढी क्षमता थोडी तहसीलदाराची. तो एक प्यादा आहे, तर त्याच्यात कलेक्टर पासून सगळे घेतले पाहिजे. कलेक्टर कशासाठी बाजूला याच्यामध्ये, महसूल विभागाचे अधिकारी का बाजूला याच्याकडे. तहसीलदार काय एवढ्या क्षमतेचा नसतो, तहसीलदारला एवढे अधिकार नसतात. कोणाच्या तरी सांगितल्याशिवाय तहसीलदार एवढी हिंमत करू शकत नाही. आणि म्हणून एखाद्या तहसीलदाराचा बळी देऊन पार्थ पवारला आणखी बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवणं हे चूक आहे. याच्यात जी चौकशी समिती, याच्यातले अधिकारी सुद्धा संशयास्पद आहे. ज्यांच्या अखत्यारीतच हे प्रकरण झालं ते चौकशी करणार आहे. म्हणजे ज्यांनी चोरी केली त्याचा तपासच त्याच्याच हातात दिलेला आहे, तर काय चोरी म्हणून तपासली जाणार आहे. बरोबर आहे. कारण परवा शरद पवारांची प्रतिक्रिया दिली ती अतिशय बोलकी आहे शरद पवार साहेबांनी, की फडणवीसांनाच विचारा की पार्थला कसं वाचवूच शकत नाही ना. याच्या डायरेक्ट मुख्यमंत्री रोल केल्याशिवाय याच्यात पार्थ पवार वाचूच शकत नाही. जे झालं वर्षावर त्याच्या बोलायला मला वेळ मिळाला नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे त्या दिवशी वर्षावरच्या बैठका झाल्या, अजितदादांनी त्वेषानी रागानी सरकारमध्ये बाहेर पडून सरकारला पाठिंबा देतो इथपर्यंतची भूमिका घेतल्याचं आमच्या कानावर, माझ्या तरी कानावर आहे. हे मी नव्यानं बोलतोय, हे की जे कानावर आहे ते सांगतोय मी, खरं खोटं बाहेर येईल. आणि म्हणून अशा याच्या कारणामुळं अजितदादा आणि पार्थ पवारांना वाचवलं जातंय असं मला वाटतं. हाच विषय, कारण भारतीय जनता पार्टीला माहिती होतं हे सगळं होणार आहे म्हणून. हे सगळं होणार भारतीय जनता पार्टीला ज्ञात होतं, आणि हे सगळं करून अजितदादाला अडचणीत आणणं हे सुद्धा त्यांचं उद्दिष्ट आहे. हे काय पूर्ण करू द्यायचं आणि नंतर झाल्यावर सांगायचं का आता याची सारवा करायची. ही मोडस ऑपरेंडी आहे की याच्यात उद्या फाईल तयार झाली आता अजितदादांची, उद्या काही केलं की याच्यात 1 मिनिटात पार्थ पवारला अटक होऊ शकते. हे भारतीय जनता पार्टीचं षडयंत्र आहे. वारंवार लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही म्हणत होतो की यांना घटनेमध्ये बदल करायचा आहे, आणि यांनी सांगितलं की विरोधक खोटा नॅरेटिव्ह सेट करतात घटनेच्या विषयी. आता ही घटना दुरुस्ती 400च्या पार, अबकी बार 400 पार म्हणत होते, ही घटना दुरुस्तीसाठी पाहिजे होती. म्हणून आता घटना दुरुस्तीची जी समिती आहे याच्यात विरोधक नकोच. एकट्या सुप्रियाताई काय करणार त्याच्यात, याला 2-4 लोक चांगले सगळे पाहिजे याच्यातले. परंतु घटना दुरुस्ती करताना अशा पद्धतीनं जर विरोधकांनाच कोणतं स्थान द्यायला नसेल, याचा अर्थ भारतीय जनता पार्टीला एकट्याने सगळ्या घटनेमध्ये बदल करायचा हे पुन्हा एकदा या हिंदुस्थान समोर येतंय. मला असं वाटतं ते सुप्रियाताई किंवा त्यांच्या पक्षाला त्या गोष्टी माहिती, परंतु सुप्रियाताई एक अभ्यासू खासदार है म्हणून त्यांना त्याच्यात घेतलं. हाल ही में रियासती हुकूमत ने कल्पिता पिंपड़े को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर फायज किया है, जिन्हें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टैक्स असेसमेंट शोबे का चार्ज सौंपा है. ये इत्तला मुताल्लिका महकमे से मौसूल हुई है.
एडिशनल कमिश्नर ओहदे पर भिजवाई गई कल्पिता पिंपड़े हाल ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ज्वाइन हुई हैं। उनके ताल्लुक से मशहूर है कि वो एक सख्त उसूल पसंद और फ़र्ज शनास ऑफिसर हैं। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करती हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर श्रीकांत ने उन्हें नई इमारतों के असेसमेंट और टैक्स आयद करने के अलावा हफ्तेवारी बाजारों की परमिशन, इलेक्शन और मरदमशुमारी के साथ साथ लीगल सेल, चिड़ियाघर, घरकुल, लाइब्रेरी, NULM, पब्लिक रिलेशन, स्टोर और कल्चरल सेक्शन जैसे शोबेजात के चार्ज उन्हें सौंपे हैं। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए एडिशनल कमिश्नर के 2 ओहदेजात मंजूर हैं। उनमें से एक एडिशनल कमिश्नर हुकूमत के जरिए डिप्यूटेशन पर भिजवाया जाता है और एक एडिशनल कमिश्नर ओहदे पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही के किसी अहल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए रणजीत पाटिल को एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से डिप्यूटेशन पर पहले ही भिजवाया जा चुका है। अब जबकि कल्पिता पिंबड़े भी रुजू हो चुकी हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने रणजीत पाटिल के पास दिए गए मुतादिद शोबेजात निकाल कर कल्पिता पिंपड़े को सौंप दिए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुड़े को एडिशनल कमिश्नर ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया था, लेकिन वाहुड़े को अब चीफ अकाउंट ऑफिसर ओहदे के अलावा इंहिदामी शोबे की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। जालना शहर के MS इंग्लिश स्कूल की छत अचानक ही जुज़वी तौर पर गिर गई है, जिसके सबब कुछ तलबा के ज़ख्मी होने की इत्तला है। जालना शहर के MS जैन इंग्लिश स्कूल में आज दोपहर एक चौंकाने वाला वाक़या पेश आया। स्कूल के हॉल की छत अचानक गिरने से नीचे खाने के लिए बैठे चंद तलबा जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर इस वाक़े ने स्कूल के हिफाजती इंतजामात पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर बाजार पुलिस स्टेशन के अमले के साथ कुछ वालिदैन फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे। जख्मी तलबा को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरिया असना स्कूल इंतजामिया की जानिब से इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है, जबकि शोबे तालीम और मकामी इंतजामिया की बेहिसी भी नुमायां हुई है। तलबा की हिफाजत के हवाले से इस गफलत पर अब कार्रवाई होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मी पेस आपले सदर बाजार पोलीस स्टेशनला फोन आला होता की हे इथून काहीतरी स्लॅब कोसळला असं सांगितलं होतं। त्या ठिकाणी गेलो असता या शाळेमध्ये एक हॉल आहे, त्या हॉलमध्ये जी स्लॅबची हे असतात जीर्ण झालेले पापुत्रे तिथे पडले, त्याच्यामुळे काही मुलं जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। त्याच्यानुसार मग आता त्यांचा जबाबदारी कारवाई करत आहोत। तेच आता विचारायचं होतं, शाळा सुटली त्यांच्या मुख्याध्यापकांची बोलून सविस्तर मला कळवलं। इंग्लिश स्कूल आहे आणि त्या शाळेमध्ये जो हॉल आहे त्या हॉलमध्ये मुलं जेवण करत होते असं सांगितलं त्यांनी, आणि त्या ठिकाणी जे स्लॅबचे पापुत्रे आहेत खाली ते पड़ले तो त्याच्यामुळे काही मुलं जखमी झाली सांगितलं। उमूमन ये कहा जाता है कि इलाक़े मराठवाड़ा की आबो हवा ज़ाफ़रान की खेती के लिए मौजू नहीं है, लेकिन इस नामुमकिन को शहर की एक तालीम याफ्ता खातून प्रिया अग्रवाल ने मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने अपने रिहायशी मकान के एक छोटे से कमरे में ज़ाफ़रान की काश्त की और 35 ग्राम ज़ाफ़रान हासिल की। पेशे से CA प्रिया अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी काम करने से पहले उसका मुकम्मल मुताला करना ज़रूरी है। इसी सोच के तहत उन्होंने तकरीबन 1 साल तक ज़ाफ़रान की काश्त का गहराई से मुताला किया। इंटरनेट के ज़रिए मालूमात हासिल करने के बाद उन्होंने पुणे में ज़ाफ़रान काश्त से मुताल्लिक़ कोर्स मुकम्मल किया और कश्मीर जाकर अमली तजुर्बा भी हासिल किया। उन्हें यकीन हो गया कि सर्द इलाक़ों की फसलें गर्म इलाक़ों में भी उगाई जा सकती हैं, तो उन्होंने अपने ख़ानदान के ताउन से घर पर ही तजुर्बा शुरू कर दिया। कश्मीर जैसा ठंडा माहौल बनाने के लिए प्रिया ने घर के पिछले हिस्से में तकरीबन 100 स्क्वायर फीट का खुसूसी शेड तैयार करवाया, जहां दर्जे हरारत को काबू में रखने के लिए कोल्ड मशीन और स्पेशल शीट्स लगाई। नमी बरकरार रखने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया और सूरज की रोशनी की जगह खुसूसी ट्यूबलाइट्स के जरिए मसनवी रोशनी दी। फितरी माहौल के एहसास के लिए परिंदों की आवाज़ों वाले स्पीकर्स भी लगाए गए। इस जदीद टेक्नोलॉजी के सहारे उन्होंने घर में ही कश्मीर जैसा मौसम तैयार कर दिया और उनका ये तजुर्बा कामयाब साबित हुआ। ज़ाफ़रान की काश्त का मौसम आमतौर पर जुलाई से नवंबर तक होता है। इसी दौरान फूल भी खिलते हैं, जबकि अगले 4 महीने बीज ज़मीन के अंदर आराम करते हैं। एक बार बीज लेने के बाद उनकी तादाद अगले साल 4 गुना बढ़ जाती है, इसलिए दोबारा बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले ही साल 35 ग्राम ज़ाफ़रान हासिल करने पर अब प्रिया अग्रवाल ने उसे बड़े पैमाने पर तिजारती तौर पर शुरू करने का इरादा जाहिर किया है।
کشمیر کی مٹی کا مطالعہ کر کے انہوں نے 2 علیحدہ تجربے بھی شروع کیے ہیں، ایک شیڈ کے اندر اور دوسرا شیڈ کے باہر۔ ان تجربات سے یہ طے کیا جائے گا کہ مراٹھواڑہ میں کس ماحول میں زعفران کی کاشت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ हे आहे इंडोर सॅफ्रॉन फार्मिंग। हे केसर आहे जे जनरली आपल्या इथे काश्मीरमध्येच होतं। काश्मीरमधला एक पॅम्पर म्हणून एरिया आहे, त्या एरियातच हे येतं। तिथल्या लोकांचं म्हणणं आहे की ते एक 5 ते 6 किलोमीटरच्या रेडियसमध्येच होतं, त्याच्या बाहेर त्यांनी ट्राय केलं तर तिथेही सक्सेस नाही झालंय। बट मी रिसर्च केलं, ट्रेनिंग्स घेतल्या, जेणेकरून मला कळलं की हे इंडोरमध्ये होऊ शकतं। इंडोर करण्याचे याचे 2-3 फायदे असे आहेत की जे आपल्याला 1 एकरमध्ये आउटपुट येतं हे 100 स्क्वेअर फीटमध्ये होऊ शकतं। प्लस काश्मीर सारखं केसर हे मराठवाड्यासारख्या एरियात येऊ शकणं हे एक खूप मोठी गोष्ट वाटली। त्याच्यामुळे मी प्रयत्न करण्याचा निश्चय केलं। म्हणजे मी माझा पहिलाच पिरियड फ्लावरिंगचा झाला आहे, सक्सेसफुली फ्लावर्स आले। त्याचे मेन 3 स्टेजेस असतात, त्याच्यानंतर ते मल्टिप्लाय होतात सीड टू सीड। आता तो एक्सपेरिमेंट माझा डिसेंबर टू एप्रिल राहील। एप्रिलच्या पुढे ते सुप्त अवस्थेत जातात, मग पुढच्या ऑगस्टला परत हे फ्लावरिंगसाठी रेडी होऊन जातात। त्यासाठी एक मी कोल्ड रूम तयार केला, ज्याच्यात मी चिलर लावलं, ह्युमिडिटी मेंटेन करण्यासाठी ह्युमिडिफायर लावलं, व्हर्टिकल फार्मिंगसाठी ह्या रॅक्स लावल्या, सनलाईटसाठी मी हे ग्रो लाईट्स म्हणून कन्सेप्ट असतं ते लावलं। वेळोवेळी ते मेंटेन केलं, जसं टेम्परेचर काश्मीरला असतो, जसं ह्युमिडिटी तिकडे असतो त्यावेळेस त्या हिशोबाने लाईट्सची इंटेन्सिटी मेंटेन केली। सगळं एक अनुकूल वातावरण दिलं जे केसर उगवण्यासाठी लागतं, आणि मी सक्सेसफुली बघितलं की फ्लावर्स आले मला। जाफर गेट मोंढा इलाके के अतराफ की बस्तियों को पानी फराहम करवाने के लिए वहाँ से गुजर रही पाइपलाइन गुज़िश्ता 6 माह से फूटी हुई है, लेकिन मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जाफर गेट इलाके में मौजूद हफ्तेवारी इतवार बाज़ार से मुत्तसिल नाले की हैं। यहाँ से अतराफ की बस्तियों में पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन गुजर रही है, जो पुरानी हो जाने के सबब बोसीदा हो गई है और जगह जगह इसमें शिगाफ पड़ चुके हैं, जिससे रोज़ाना हज़ारों गैलन पानी यूं ही नाले में बहकर ज़ाय हो रहा है। और तो और वहाँ मौजूद दुकानों और कारोबारी इदारों के सामने जमाशुदा पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे उन लोगों का कारोबार मुतासिर होने लगा है और लोग हादसात की इज़्ज़त पर भी हैं। मकामी ताजिरों का कहना है कि मुतल्लिक़ा शोबे से बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है और वो इस फूटी हुई पाइपलाइन की फौरी मरम्मत का मुतालबा करने लगे हैं। ये पानी की ऐसी समस्या है कि ये पानी 3 महीने से लगभग हो चुके हैं, इसको ये पानी बह रहा है कंटिन्यू, और ये नल का पानी है, लाखों लीटर पानी जो तो इसका अभी तक बह चुका है ना, कि ये जो लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, उनकी इतनी बड़ी समस्या है। और ये लाखों लीटर पानी तो हमारा इसी जो है तो बह जा रहा। इसके लिए जो है कंप्लेंट वगैरह की है, अधिकारी सिर्फ आकर गड्ढा खोद कर उसको जो तो पैच वगैरह लगा कर चले जा रहे, और लीकेज इतना बड़ा है कि वो लीकेज बंद नहीं हो पा रहा। 3 महीने से ये पानी कंटिन्यू बह रहा है। इसकी समस्या बहुत बड़ी है और ये करने के लिए वो तैयार नहीं है, बस तात्पुरता आ रहे, कोई प्रेस वाला कोई रिपोर्ट वाला आकर उनकी वीडियो वगैरह डाल रहा तो तात्पुरता आकर सिर्फ गड्ढा खोद कर उसको वापस जो तो कपलिंग वगैरह लगा कर चले जा रहे। ये जो है जाफर गेट का इलाका है मोंढे में, ये पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। ये तकरीबन 4 महीने से ये पाइप फुटे हुआ है और इसके अंदर लाखों लीटर पानी जो है रोज़ाना बह रहा। अब देखें हम दूसरे इलाकों के अंदर जैसा मिसरवाड़ी हो गया, इधर पानी की किल्लत है, इन लोगों को ये पानी मिल जाएगा तो कितना फ़ायदा होगा। इसके लिए जो है ये पाइपलाइन जो फूटी है इसकी समस्या को हल करे। अब ये बहुत बड़ा मसला है, तकरीबन रोज़ाना दिन या रात अब 24 घंटे पानी बह रहा, तो ये लाखों लीटर पानी बह रहा। तो इसके लिए प्रशासन से विनती है कि प्रशासन जो है इसकी तरफ ध्यान और तवज्जो दे और ये पाइपलाइन की जो है समस्या को हल करे। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट के अहाते में मौजूद वकीलों के कमरा नंबर 1 की छत में लगे सीलिंग फैन में अचानक शॉर्ट सर्किट के सबब आज आग लग गई। इससे पहले कि ये आग आगे बढ़ती उस पर काबू पा लिया गया, जिसके सबब यहाँ कोई जानी व माली नुकसान नहीं हो पाया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक उकला के हॉल नंबर 1 में मौजूद सीलिंग फैन की तारें आपस में टकरा जाने से चिंगारियां निकली और फैन ने अचानक आग पकड़ ली। चंद ही लम्हों में हॉल में धुआं फैल गया। मौके पर मौजूद उकला ने फौरी तौर पर बिजली की सप्लाई बंद करके एक बड़ी आफत टाल दी। वाक़े के फौरन बाद बिजली महकमे के एहलकारों को तलब करके मरम्मत का काम शुरू किया गया। अदालत के अहाते में ये वाक़या पेश आने के सबब कुछ वक्त के लिए उकला और वहाँ मौजूद शहरियों में शदीद बेचैनी और घबराहट का माहौल देखा गया। तहम बरवक्त कार्रवाई के सबब एक बड़ा हादसा टल गया।
एएमसी के नागरी मित्र पथक और जिंसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 450 किलो ममनुआ प्लास्टिक जब्त किया और खाती से 20,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक MS-20 BT 7884 नंबर की रक्षा के जरिए ये ममनुआ प्लास्टिक गैर कानूनी तरीके पर फरोख्त के लिए लाया जा रहा था। नागरी मित्र पथक और जिंसी पुलिस एहलकार रात के वक्त गश्त पर थे। इसी दौरान जिंसी ता खदीम मोंढा रोड पर रक्षा को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान तकरीबन 450 किलो ममनुआ प्लास्टिक बरामद हुआ। मुतालिका रक्षा को जब्त करके जिंसी पुलिस स्टेशन में जमा कराया गया और 20,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे और पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी बुधवंत की रहनुमाई में अंजाम दी गई। इस कार्रवाई में नागरी मित्र पथक के सरबराह प्रमोद जाधव, जिंसी पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विकास सहाने और अमला सुरेश वाकचौरे, खिल्लारे, संतोष संगपाल, आबाराव सालुंखे, वाकले और दीगर ने हिस्सा लिया। कॉलेज स्टूडेंट्स को नशे की लत में मुब्तला करने वाले और मुंशियात के कारोबार में मुलविस एक शख्स को सिडको MIDC पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 4 किलो 218 ग्राम गांजा जब्त किया गया। फाजिल अदालत ने उसे 3 दिन तक PCR का हुक्म दिया है। गिरफ्तार मुलजिम का नाम शुभम मधुकर साठे बताया जा रहा है। API इंस्पेक्टर भारत पाचोले और उनकी टीम को 11 नवंबर को गश्त के दौरान इत्तला मिली थी कि मिनी घाटी इलाके में एक रिक्शा ड्राइवर गांजा फरोख्त कर रहा है। इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने चौधरी कॉलोनी में जाल बिछाया। कुछ देर बाद शुभम साठे हाथ में थैला लिए खड़ा नजर आया। पुलिस को देखकर वो फरार होने लगा, मगर टीम ने पीछा करके उसे पकड़ लिया। उसके थैले से 4 किलो 218 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस कार्रवाई में पुलिस एहलकार संजय नंद, संतोष सोनोने, परशुराम सोनोने, प्रकाश सोनोने, संतोष गायकवाड़, रतन नागलोत और अरविंद पुरी शामिल थे। तहकीकात के दौरान पता चला कि शुभम साठे एक रिकॉर्ड याफ्ता मुंशियात फरोश है, जिसके खिलाफ पहले भी 2 कार्रवाइयां हो चुकी हैं। एक मरतबा MIDC सिडको पुलिस ने उसे गांजा पीते हुए पकड़ा था, जबकि दूसरी बार चिकलठाना ग्रामीण पुलिस ने उसे 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस के मुताबिक शुभम साठे के बाकायदा गाहक चिकलठाना, मुर्तुजापुर, विठल नगर और रामनगर इलाकों के कॉलेज तलबा थे। वो तालीम याफ्ता और अच्छे खानदान के नौजवानों को नशे की लत में मुब्तला कर रहा था। जालना शहर की एक रिहायशगाह से 17 लाख रुपये और आधा किलो चांदी की ईंटें चुराने वाले सारिकों को सदर बाजार जालना पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी का 100% सामान बरामद कर लिया गया। जालना शहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने वाक़े शिव शक्ति मिल के करीब नरेंद्र गुलाब शाह सावजी के घर में 11 नवंबर की शाम तकरीबन 6 बजे चोरी हो गई थी। इस मामले में खदीम जालना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने सिर्फ चंद घंटों में ही मुलजिमों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 17,76,000 रुपये नकद और 5 किलो वजनी चांदी की ईंटें बरामद कर ली। इस केस में पुलिस ने मुलजिमीन अविनाश अंकुश वाघमारे और यशराज सतीश खांडे भरड़ को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि मुलजिम जब मसरूक़ा सामान के साथ फरार होने के लिए अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी की मरम्मत करवा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ये कार्रवाई SP अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नुपानी की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाले, PSI मोरे, एहलकार बाबा गायकवाड़, विलास राउत और सिद्धेश्वर राठौड़ की टीम ने अंजाम दी। काल 12 नोव्हेंबर रोजी कदीम जालना पोलीस स्टेशन येथे तक्रार प्राप्त झाली होती की शिवशक्ती मिल एरियामध्ये एक व्यापारी नरेंद्र गुलाबजी सावजी याच्या घरात दिवसात कोणीतरी चोरांनी 9.5 लाख कॅश, 5 किलो चांदी अशा मोठा सामान चोरी केलेला आहे। लगेच त्याची घटनाची गंभीरता पाहून त्याच्यामध्ये लक्ष दिला आणि सर्व आमचे कदीम जालना पोलीस स्टेशन DYSP कुलकर्णी साहेब, फोरेन्सिकची टीम, LCBची टीम त्याच्यामध्ये कामात लागली होती। पण सगळा घटनास्थळ बघून असा लक्षात येत होता की काही कोणी इनसाइडरचा याच्यामध्ये रोल असेल, कारण काही जास्त सामान अस्तव्यस्त नव्हता आणि चाबी काढली, अलमारी उघडून चोरी केली आणि चाबी परत तिथेच ठेवली। तर त्या लिंकवर वर्कआउट करताना त्यामध्ये 2 आरोपी अविनाश अंकुश वाघमारे आणि यशराज सतीश खांडे बराड
हे दोघे जालनाचे लोकलच आहे. या दोघाला अटक केलेला आहे आणि याच्याकडून 100% मुद्देमाल सेम डे हस्तगत करण्यामध्ये पोलिसाला यश प्राप्त झालेलं आहे. याच्यामध्ये काय एकूण 17,76,76,000 किमतीचा टोटल हा मुद्देमाल आहे जो जप्त केलेला आहे. हे चांगली आणि तत्पर कामगिरी केल्यामुळे, कारण त्या घरात लग्न होतं आणि लग्नासाठी त्यांनी सगळा सामान वगैरे काढलेला होता, तर त्या फॅमिलीला चांगला रिलीफ भेटणार आहे. कोणी फॅमिली किंवा जवळचे लोक याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच्यावर पण आमची तपास आता पुढची सुरू आहे. ही कामगिरी करण्यासाठी PI श्री शेवाळे, PSI मोरे, हेड कॉन्स्टेबल सदा राठोड, बाबा गायकवाड, दिलीप गायकवाड, संदीप चव्हाण, मतीन शेख, इम्रान खान, अमजद पठाण, धरमपाल सुरडकर आणि महिला कर्मचारी शिवकन्या बोराडे या सर्वांनी याच्यामध्ये अतिशय चांगली कामगिरी करें, याला योग्य तो रिवॉर्ड हमें देना है. नक्षत्रवाड़ी इलाके में आज सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद के शदीद तौर पर जख्मी होने की इत्तला है. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये तीनों अफराद अपना काम ख़त्म करके मोटरसाइकिल पर गांव वापस जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आने वाली एक आयशर ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बराह रास्त आयशर के पहियों के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसा पेश आया. हादसे में 2 मर्द और एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. मकामी शहरियों ने फौरी तौर पर जायखू पर पहुंचकर जख्मियों को सरकारी घाटी अस्पताल मुंतकिल किया. डॉक्टरों के मुताबिक तीनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है. हादसे की इत्तला मिलते ही सातारा पुलिस स्टेशन के अहलकार मौके पर पहुंचे, पंचनामा किया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. पैठन गेट और सब्जी मंडी के 3 DP रास्तों का आज किया गया टोटल स्टेशन सर्वे. मार्किंग के बाद होगी यहां इंहदामी कार्रवाई, कहा असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर रमेश मोरे ने. कहीं गुज़िश्ता दिनों यहां पेश आई कत्ल की वारदात के सबब तो नहीं की जा रही है कार्रवाई, मकामी साकनान में चर्चे जारी. लोकल बॉडी इंतखाबात का बिगुल बजते ही सियासी गलियारों में तोड़ फोड़ की हलचल हो गई शुरू. शिवसेना उद्धव ग्रुप के जालना जिला सदर ने थाम लिया एकनाथ शिंदे का हाथ. शिंदे और दीगर कायदीन ने की पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई. इंटरवल के दौरान खाना खा रहे तलबा पर अचानक गिर पड़ा MS इंग्लिश स्कूल की छत का एक हिस्सा. स्कूली इमारतों की खस्ता हाली पर शोबे तालीम के अफसरान की चश्मपोशी से सरपरस्तों में फैल गई नाराजगी. और गांजे का कारोबार करने वाला एक रिक्शा ड्राइवर सिडको MIDC पुलिस स्टेशन के शिकंजे में 4 किलो गांजा भी किया गया जब्त. सदर बाजार पुलिस स्टेशन जालना ने भी की बड़ी कार्रवाई. चोरी की वारदात के बाद कुछ ही घंटों में सारिकों को कर लिया गिरफ्तार. 17 लाख रुपये नकद और आधा किलो मसरूखा चांदी भी कर ली बरामद. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.